جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے، بے شک ان قریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس جہاں کا جزا کس کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، یعنی کہ اے میرے رسول، ان جو کفار قریش ہیں جو تمہارے اوپر ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تمہارے اوپر جو ہے کہ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی میرے تمام پیغمبر اور انبیاء جو ہم نے بھیجا، نبی جو ہم نے بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی سب چیزیں ہو چکی ہیں۔ یہ تو میرے نبی جو ہیں کہ ان کے لیے جو ہے کہ اپنے ان کا ظلم اور ستم سہ رہے ہیں، ان کو بچانے کے لیے جہنم کی آگ سے، ان کو راستے پہ لانے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے ایسا کیا ہے، ایسا کرتے رہے، اور میں نے ان کو جو ہے کہ ڈھیل دیتا رہا ہوں، لیکن پھر جب ہم نے کسا تو کوئی ان کو بچا نہ سکا، کوئی ان کو بچا نہ سکا۔ قوم لوط کے اوپر جب اللہ نے جب ان کی قوم کو ایسا غرق کیا، ایسے اٹھا کر کے، کچھ نہیں ہو سکا، کوئی نہیں بچ سکا۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی تمہارے سے، یعنی کہ ان کفار قریش سے پہلے بھی جو ہے کہ جو ہمارے نبی ہیں ان کے ساتھ بھی اس طریقے سے جو ہے کہ جو کفار تھے، جو کافر تھے، اس طریقے کی مکاری اور اس طریقے کی سازشیں اور اس طریقے کی تدبیریں کر چکے ہیں، لیکن ان کی تمام تدبیریں کچھ کام نہ آ سکی، وہ بس چلاتے رہ گئے، وہ ہائے توبہ کرتے رہ گئے، وہ تمام طریقے کی سازشیں کرتے رہ گئے، وہ تمام طریقے سے جو ہے کہ ہمارے نیک بندوں کو آزمائش کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے کہ اپنے ظلم و تشدد کرتے رہ گئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ کیا اسلام رکا؟ کیا کوئی مسلمان ہونا بند ہو گیا؟ نہیں ہوا، اسلام تو اور پھیلا، کیونکہ ان کی تدبیر جو ہے، جو بھی ان کی سازشیں ہیں، وہ اپنی سازشیں کر لیں، تدبیر کو اصل بنانے والا میں ہوں، مالک کائنات رب العالمین، بے شک خدا تعالی جو حق ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں، بے شک تم سازشیں کر لو، تم چالاکیاں کر لو، تم نے جو کرنا ہے کر لو، تم کو کیا لگتا ہے تم اپنے اس چالاکی میں، اس سازش میں تم کامیاب ہو گئے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمان بندہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہارے اذیت میں آ جائے، تمہارے ظلم میں آ جائے، تمہارے جو ہے کہ سازشوں میں پھنس جائے، تمہاری جو ہے کہ مکاری میں آ جائے، تمہارے جو ہے کہ تمام چالوں میں جو ہے کہ بیچارہ پھنس جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے کہ بھوکا رہنا پڑے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر ظلم ہو سکتا ہے اس کے اولاد کے ساتھ تم جو ہے کہ ناانصافی کرو، ہو سکتا ہے کہ تم اس کے گھروں میں جو ہے کہ ناانصافی کرو، ہو سکتا ہے کہ تم اس کے اوپر ستم کے پہاڑ توڑ دو، تم کو جو کرنا ہے کر لو، لیکن میرا بندہ جو ہے وہ میرا بندہ رہے گا، ایمان پر ہی مرے گا، اور ایمان پر ہی مرے گا تو ایمان پر ہی اٹھایا جائے گا، اور ایمان پر ہی اٹھایا جائے گا تو اس کی وہ تمام آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے، وہاں پر وہ جو ہے کہ اس کو جنت کی وہ نعمتیں ملیں گی جو کہ اس ظلم اور اس ستم کو جو ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں، پھر وہ ہوا ہو جائے گی۔ لیکن تمہارا کیا ہوگا؟ تم نے بھی تو مرنا ہے نا۔ جو ظلم جو بھی ظالم ہے، کیا ظالم آباد رہے گا؟ ظالم تو آباد نہیں رہے گا، اس نے بھی تو ختم ہونا ہے، اسے بھی تو بڑھاپا کا سامنا کرنا ہے، اس کو بھی تو وہ وقت آئے گا جب اس کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، نہیں ہوں گی، اس کی بھی ہڈیاں کمزور ہوں گی، اس کو بھی بڑھاپا آئے گا، پھر ٹپک جائے گا، پھر کہا جائے گا، پھر تو آئے گا نا میرے پاس، تو کون کامیاب رہا؟ وہ کامیاب رہا جو نیکوکار میں ہو کر کے میرے پاس آیا، یا وہ کامیاب رہا جو ظالم بن کر کے میرے پاس آیا؟ وہ کامیاب رہا جو نیکوکار کو جس کو جنت ملی، اور یا وہ ظالم جو اپنے ظلم کے بدولت اس کو جہنم ملی؟ کون کامیاب رہا بتاؤ؟ ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تو اپنی تدبیریں کرتا ہے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تمام طریقے کے جو کفار قریش جو ہیں سازشیں کرتے رہے، منصوبے بناتے رہے، کتنی منصوبے بنائے، ایسا منصوبے بنائے کہ جو ہے کہ 60 نوجوان الگ الگ قبیلے کے ہاتھوں میں تلوار لیے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف سے گھیر لیے،
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर निकलेंगे जो है तो हम उनको जो है कि कत्ल कर देंगे। एक दो नहीं, 60। सुन लीजिए, बात निकली है तो बात पूरी हो जावे। मैं आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने फरिश्तों से बता दिया कि आज तुमको निकलना है, आज रात में तुमको निकलना है हिजरत के लिए, मक्का छोड़ देना है। तुम एक काम करो, अपनी बिस्तर पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुला देना, बोलना चादर ओढ़ के सो जाए, और अपने दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाना और उनके साथ तुम निकल जाना। ठीक है। अब जब रात हुई तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकल रहे हैं। वो 60 नौजवान हाथों में तलवार लिए जो खड़े हैं कि हुजूर निकलेंगे तो हम अटैक करेंगे। अल्लाह ने उनके ऊपर ऐसी नींद डाल दी, और इधर हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद रेत उठाए और सूरह यासीन पढ़े और पढ़ के ऐसे फूंक दिए, और वो सारी रेत उन 60 के पर पड़ गई, और वो सब इस कदर नींद के आलम में आ गए कि हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से गुजर रहे हैं, किसी को खबर नहीं, पता ही नहीं चला। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए। अब जब सुबह हुई तो देख रहे हैं कि अरे अभी तक हुजूर आए नहीं। तो एक कह रहे हैं कि जाकर के घर में झांक के देखो, तो कह रहे कि नहीं भाई, हम घर में झांक के नहीं दे सकते, हो सकता है घर में कोई औरतें वगैरह हो। उस टाइम तो किरदार हुआ करता था ना, मतलब कि काफिर का भी किरदार होता था। यहाँ तो आज के जमाने में क्या है, अल्लाह माफ करे। तो बहरहाल उन लोगों ने फिर जब दाखिल हुए और चादर हटाए तो देखे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला बिस्तर पर। तमाम चाल नाकामयाब। तो बहरहाल तो इसी तरीके से जो है ये बहुत इनकी चालें चली गई, और बहुत तरीके से हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कि इन्होंने उनके ऊपर जुल्म करने की कोशिश किया, लेकिन तमाम चालें नाकामयाब हो गई, तमाम साजिशें नाकामयाब हो गई, तमाम उनके मंसूबे फेल हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि लेकिन तमाम तदबीरें अल्लाह ही की है, यानी कि अल्लाह ही तदबीर बनाता है, उनकी तदबीर कोई काम में नहीं आएगी। जो शख्स जो कुछ कर रहा है अल्लाह के इल्म में, कोई भी बंदा अगर कुछ भी करता है, कुछ भी कर रहा है, अल्लाह बेशक जानता है, अल्लाह उससे बेशक बाखबर है। अन करीब काफिरों को मालूम हो जाएगा कि उस जहां की जजा किसके लिए, यानी कि जो जगह हमेशा के लिए है, जो एंडलेस है, वो जगह किसके लिए है। जाहिर सी बात है, जो ईमान लाया, जो नेकोकार रहा, जो अल्लाह के अहकामात को निभाया। ठीक है ना। ओके, आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, या काफिर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं। अब देखिए, अल्लाह हर बात को जान रहा है। अब देखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये काफिर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं। आप जवाब दीजिए कि मुझ में और तुम में अल्लाह गवाही देने वाला काफी है बेशक, और वह जिसके पास किताब का इल्म है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि अच्छा ये लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं, ये तो ये कहते हैं ना, ये तो ये कहते हैं, और अल्लाह सब कुछ जान रहा है। ये जो कह रहे हैं कर रहे हैं, हम जान रहे हैं। आप उनको कह दीजिए कि मुझ में और तुम में अल्लाह गवाही देने वाला काफी है। भाई आप उनकी बातों को क्यों सुन रहे हैं, क्यों आप परेशान हो रहे हैं, क्यों उनके बातों से आप मतलब कि नर्वस हो रहे हैं। वो तो काफिर है, वो कुफ्र पे आमादा है, वो तो अल्लाह का ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं, अल्लाह के अहकामात को इनकार कर चुके हैं, कुरान को इनकार कर चुके हैं। वो अगर कह रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं, तो वो है ही कौन, वो तो खुद कुफ्र में भरे हुए। मैं कह रहा हूं कि आप मेरे रसूल हैं, तो आप उनको कह दीजिए। क्या कह दीजिए, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बड़ी बात है। वो कहते हैं कि जो है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, मेरा अल्लाह की गवाही काफी है। मेरे अल्लाह ने कह दिया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो बस मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचना। तुम क्या कह रहे हो, तुम कुछ भी कह लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, मेरा अल्लाह का गवाही देना काफी, अल्लाह ने कह दिया बस। और वह जिसके पास किताब का इल्म, ये भाई कुरान जो आ रही है, जो वही जो आ रही है, जो अल्लाह की आयत आ रही है, किसके ऊपर आ रही है, तुम्हारे ऊपर आ रही है, मेरे ऊपर आ रही है, मेरे ऊपर आ रही है, तो मैं सच्चा हुआ ना, मैं ही सच्चा हुआ ना।
भाई जिसके ऊपर इल्म आ रही है, जिसके ऊपर किताब आ रही है, जिसके ऊपर वही आ रही है, वही सच्चा है। अब तुम में से कोई बंदा कह दे कि वो नबी है नौजुबिल्ला, वो रसूल है नौजुबिल्ला, तो उसके ऊपर तो अल्लाह की जब वही आ ही नहीं रही तो जबान से कहने से क्या फर्क पड़ता? जब तुम जबान से कह दो कि मैं अल्लाह का रसूल नहीं हूं तो क्या फर्क पड़ता? तुम तो खुद कुफ्र में हो, और तुम्हारा क्या अंजाम होना ये तो मैं जान रहा हूं। तुम्हारे बारे में अल्लाह ने क्या वादा कर रखा ये भी मैं जान रहा हूं, और ये हो गया है ना, ये हो गया रहना है। तो तुम कौन होते हो मुझे ये बोलने वाले, बताने वाले? बहरहाल ये तो हमने इस चीज को ऐसा एक्सप्लेन किया, लेकिन अल्लाह के रसूल हमारे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बस वही बातें कहते थे जितनी बातें कुरान में कही गई, न इससे ज्यादा न इससे कम। यानी कि हम आपको ये बताने के लिए जो भी हमने अपने अल्फाज को इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला माफ करे माज़अल्लाह, ये तो हमने अपने बातों को एक तरह से रखने के लिए बात की। लेकिन जो कुरान ने जितना बात कहा, जैसे कुरान ने कहा कि आप कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा अल्लाह की गवाही काफी है, तो मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस उतना ही कहे, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। तो मेरे अजीज दोस्तों नाज़रीन, है ना, हम लोगों ने बात को थोड़ा सा उसको और क्लैरिफाई के लिए बातें रखी, है ना। कुरान जितनी बातें कही है बस उतनी ही बातें हैं, उतना ही जुमला है, उतना ही सेंटेंस है, वही हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें जितना अल्लाह ने कहा और जो कुरान में आज है। अब हम उस पर गौर और फिक्र के दरमियान, उसके जिक्र के दरमियान अपने बातों को इस तरीके से रखते हैं कि हमारे भी जो है कि दिलो दिमाग तक चली जाए और आपके भी दिलो दिमाग तक चली जाए, और दुश्मनान इस्लाम जो अगर सुनते हो तो उनके भी दिलो दिमाग तक बात चली जाए, उनके भी दिलो दिमाग तक चली जाए, बात समझ में आ जाए। क्योंकि उनको तो छोटी बातें बताई जाए तो समझ में नहीं आएगी जब तक कि पूरी तरह से एक्सप्लेन ना किया जाए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि ये तमाम बातें हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए, और हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि दुनिया के सामने सारी बातों को रख दिए कि अल्लाह ने ऐसे कहा, अल्लाह ने ऐसे कहा, अल्लाह ने ऐसे कहा, देखो अल्लाह की वही आज आई, अल्लाह की वही में आज ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, सारी बातें। अब हमने जो है कि उसको गौर करना है, उस पर फिक्र करना है, उस पर सोचना है और यकीन करना है कि जो बातें कही गई ये बेशक अल्लाह का कलाम है, बेशक यही वही उतरी है, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम है, और हमको इस पर अमल करना है। अल्लाह के तमाम अहकामात जो अल्लाह ने कही उनको निभाना है, उनको पूरा करना है, और अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि हमें ईमान पर ही दुनिया में रखे, जितनी हमारी सांसें हैं, जितने दिन हमने रहना है, जो भी हमारी उम्र है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको ईमान पे रखे, एक नेक मोमिन बना के रखे। जब वक्त आखिर आ जावे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान के साथ हमारा उठावे, यानी कि हमारे ज़बान पे कलमा तैयब हो, हमारा दिल दिमाग और रोम और रूह जो है सब गवाही दे ये नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह के। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बेशक हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उनके बंदे हैं, है ना। हमारी इसी गवाही के साथ, इसी ईमान के साथ हमारी फौत हो, और यहाँ तक कि जो है कि जब हमारा कब्र में जब हम उठाए जाए तो बेशक जो है कि हम अल्लाह के उन तीनों सवालात को हम कायदे से जवाब दे पाएँ, हम अपने आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान पाएँ। इसके बाद जब क़यामत के रोज़ हमारे पास सवालात हों तो हम हमारे इतना आसान हो कि धड़ाधड़ हम दिए चले जाएँ, और उसके बाद हमारा ठिकाना जो है जन्नत फिरदौस के आला मुकाम पे हो, जहाँ पर हम अपने आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कि उनको देखें, उनके साथ रहें और उनसे बातचीत करें, है ना। और तमाम अंबिया कराम जो है कि हम उनको देखें और उनसे बातचीत करें, और अल्लाह की मेहरबानियाँ, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नेमत, है ना, वो तमाम चीज़ों का फ़ायदा हमेशा 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 के लिए फ़ायदा उठा पाए। तो इसी के साथ मेरे दोस्तों अब हम इजाज़त चाहेंगे, और यहाँ पर सूरह अर्राद मुकम्मल हुई। ये सूरह अर्राद जो है कि मक्का में उतरी थी, जिसमें हम लोगों ने 44 आयत पर गौर फिक्र किया। कहने पढ़ने और बोलने में किसी भी तरीके से अगर कुछ भी अगर हमसे जो है कि खाकसार इस नाचीज़ से अगर कुछ भी अगर ऐसा निकल गया हो जो कि अगर मुनासिब नहीं या गलत हो या फिर गलती हो गई हो हमसे, तो उन तमाम चीज़ों के लिए अव्वल तो हम सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे इस नाचीज़ बंदे को, और इल्म की हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इल्म दे, तौहीद दे, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि आप तमाम नाज़रीन से भी जो है कि हम माज़रत चाहेंगे अगर कहने बोलने पढ़ने में किसी भी तरह की गलती हो तो आप भी हमें माफ़ करें, नज़रअंदाज करें, और जो कुछ भी आपने कहना है कमेंट में ज़रूर कहें, ताकि जो है कि आपकी बातें हमारे लिए जो है कि एक हमको उससे नसीहत मिले, ठीक है ना। और दूसरी ये कि आपका जो सब्सक्राइब करते हैं या आप शेयर करते हैं या लाइक करते हैं, इससे जो है कि बेशक और बेशक ये हमारे लिए हौसला अफजाई है। तो दोस्तों इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक अल्लाह की हर बातें सच है और बेशक वो अजीम है। अल्लाह हाफ़िज़।